Hello everyone, I am Ritika Jusgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Artificial Intelligence, we discuss about Unit 2. So Unit 2 is based on problem solving technique, where we already discuss about the heuristic search technique, hill climbing algorithm, then best first search algorithm, A-star algorithm also. Okay. So in this video, we are going to discuss about the problem reduction or the decomposition. So let us discuss here. So in the problem reduction, or which is also called as a problem decomposition, so we already know about the divide and conquer strategy. So where the solution to a problem can obtain by decomposing it into the smaller problems. Okay, where if we are having one problem, so we have to find out the solution for that particular problem. So if you are using the divide and conquer technique, so this technique used to divide our problem into the sub problems. Okay, so each of these sub problem can then solve to get its a sub solution. So these sub solutions can then be recombined to get a solution as a whole. So that is called as a problem reduction or a problem decomposition. So the AND OR graph, which is also called as a tree, is useful for representing the solution of a problems that can be solved by decomposing them into the set of smaller problems, all of which must then be solved. So this method generate the arc, which is called as a AND arc. One AND arc may point to any number of successor nodes, all of which must be solved for an arc to point to a solution. So this decomposition or reduction generates the arc that we can call it an AND arc. So one AND arc may point to the any number of successor nodes, all of which must be solved in order for the arc to point to a solution. So just as in the OR graph, okay, why we call it as the AND OR graph? Okay, so in the OR graph, the several arcs may emerge from the single node. Okay, so indicating a varieties of ways in which the original problem might be solved. Okay, so here how we create a node. So this is our node, and we are creating this node and dividing this node into the two categories. Okay, so this is our A node. Okay, AND OR ग्राफ विच इज़ यूज इन द ट्री और अ ग्राफ. ट्री के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राफ के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर नोड, सो दिस पर्टिकुलर नोड इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू दिस पार्ट B and C, सो विच इज़ मूव एट दिस साइड ऑल्सो और दिस साइड ऑल्सो. एक तो वो B की तरफ मूव कर सकता है या फिर C की तरफ मूव कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ OR ग्राफ. दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ OR ग्राफ. एक तो वो B की तरफ मूव करेगा या फिर C की तरफ मूव करेगा. ओके, सो दिस इज OR ग्राफ. जो सेवरल आर्क्स में इमर्ज. सो यहाँ पे एक मैं अगर थर्ड आर्क यूज करती हूँ, सो यहाँ पे होगा D. इमर्ज फ्रॉम द सिंगल नोड. फ्रॉम द सिंगल नोड A, ऑल द नोड्स आर डिवाइडेड, दैट इज B, D and C. तो इंडिकेटिंग द वराइटीज ऑफ वे इन विच द ओरिजिनल प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व. सो अगर A वाले प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, सो B क्या होगा, एक सब प्रॉब्लम होगा, D एक सब प्रॉब्लम होगा, C एक सब प्रॉब्लम. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वराइटीज रिलेटेड टू दिस नोड A. ओके, बट इफ आई एम यूजिंग हियर आर्क, ओके, डिकम्पोजिशन और रिडक्शन जनरेट आर्क दैट वी कैन कॉल एज अ AND आर्क. सो अगर मैंने यहाँ पे एक आर्क जनरेट किया है विच इज कॉल्ड एज अ AND आर्क. So one AND arc may point to the number of successor nodes. Okay, so A के successor nodes कौन से है, D and C. Okay, and B also, all of which must be solved in order for the arc to point to the solution. Okay, so ये क्या करेगा, D को भी यूज़ करेगा और C को भी यूज़ करेगा. Okay, दोनों D और C को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, B. so यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, B और D and C, B and C. Okay, so see here there is one example for an AND OR graph. Okay, so in this example the goal is what, acquire the TV set. So in that the OR arc is what here. So this is a OR condition. Okay, so this is a OR condition.
एंड कंडीशन इज व्हाट, यहाँ पे हमने आर्क यूज़ किया है, सो ये क्या होगी, हमारी एंड वाली कंडीशन होगी. ओके, सो द गोल इज व्हाट, एक्वायर द टीवी सेट. सो देर इज वन कंडीशन दैट इज टेल टीवी सेट, और हम क्या कर सकते हैं, अर्न सम मनी एंड देन बाय टीवी सेट. ओके, अर्न सम मनी एंड बाय टीवी सेट. सो दो वेज से हम टीवी को कैसे एक्वायर कर सकते हैं. एक तो कंडीशन क्या है, स्टेल टीवी सेट. ओके, सो उससे हमें क्या मिलेगा, टीवी मिलेगा. बट अनदर कंडीशन क्या होगी, सम मनी अर्न करो. ओके, अर्न सम मनी एंड देन यू कैन बाय द टीवी सेट. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंड और ग्राफ. एक तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करो, और सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी है आपके पास, ये वाली कंडीशन को आप चूज करो, so that you can get this type of goal. Okay, so see here, so this is our root node A, B, C, D. So these are the sub nodes. Okay, so here the value for this A node is 8, the value for B and C 3 and 4, and value for D is 5. but यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, आर्क यूज़ किया है. सो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई की है, एंड कंडीशन. सो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, 3 + 4. तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ओवरऑल वैल्यू 7. ओके, सो और कंडीशन के अंदर है हमारे 8, देन और कंडीशन के अंदर है हमारे पास 7 एंड 5. ओके, सो सी हियर, the problem solver might be inefficient because it cannot take the advantages of problem decomposition. So consider the problem of delivering the set of overnight packages to the problem decompositions and their respective destinations also, so which are scattered across the some city. Okay, so it makes sense that to find out the nearest airport for each destination and divide the overall problem into the several sub-problems. So one for each airport within the set of packages routed through a given airport, whether further decomposition is possible depending on the destination city. Okay, suppose we need to solve the problem of computing expression like integration of x3 plus x2 plus 2x plus 3 sin x dx. Okay, how to integrate this type of function. Okay, dividing this problem into the sub problem. So this is called as a problem reduction or the decomposition. Okay, so we can solve this type of problem very intelligently by breaking down it into the smaller sub problems, each of which we can then solve by using the small collection of the specific ruling. So this diagram shows that the problem tree, which is generated by using the problem decomposition technique of or a reduction. Okay, so we can solve very large problems very easily by using this reduction technique. Okay, so see here how to integrate this type of formula. So here we have this formula, and we are integrating first integration of x3 dx. So then integration of x2 x square dx, then integration of 2x dx, and then integration of 3 sin x dx. So if we are using the integration function for this x cube dx, so where we get the x square divided by 4. If we are integrating this value x square dx, then x3 divided by 3, then we are integrating this type of equation to integration of x dx, because 2 is a constant value and x dx is what, x square. Okay, so then if we are integrating this type of value, so here we get the 3 sin x dx minus 3 cos x. Okay, so this is a solution for this particular formula. Okay, so in the problem reduction or decomposition, we can use the recursive integration program that works as first we have to check whether the problem immediately solve or not. Okay, first we have to analyze our problem, and we can after analyzing we can check we can immediately solve this particular problem or not. Okay, so immediately कैसे solve करेंगे, हमें अगर आंसर मिलता है yes और no में, तो हम easily उसको क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं उस problem को. Okay, so if yes, then the solution is written directly. If no,
then the integrator check whether the given problem can decompose into the smaller problem or not। ओके, सो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, येस और नो टाइप का आंसर मिलेगा। अगेन जो भी स्मॉलर पार्ट है हमारा, अगर येस आता है देन क्रिएट अ सब स्मॉलर प्रॉब्लम। जो भी हमने सब प्रॉब्लम लिया है उसका अगेन सब प्रॉब्लम करेंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास एक कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, उसको अगर हमें इमीडिएट आंसर मिलता है यस और नो के अंदर, अगर यस मिलता है तो वो सॉल्व हो जाएगा, अगर नो मिलता है, अगर हमें सॉल्यूशन अगर नो में मिलता है, ओके, देन वी आर डिवाइडिंग दिस प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम्स। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स और अ स्मॉलर सब स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ओके, ये क्या होगा हमारा सब प्रॉब्लम। इसको अगर हमने फिर से डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे सब स्मॉलर प्रॉब्लम। सो अगेन ये जो सब प्रॉब्लम्स है ये, इफ यस देन क्रिएट अ सब स्मॉलर प्रॉब्लम एंड कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। ओके, एंड अगर नो, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल एंड डिकम्पोजेबल। ओके, like this. So see here, this type of problem we have a start condition, okay, and if we start the program or problem, first case is a visit mall and visit beach. So अगर इस टाइप का अगर कोई भी ट्री अगर आती है हमारे पास, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है, सो हम कैसे एनालाइज करेंगे, इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजिट मॉल, अगर मॉल को विजिट कर दे तो द मैट्रिक्स, द पिज़्ज़ा हट, सरवना भवन, देन भुवन सोमा, सेवन समसोई, पिज़्ज़ा हट। अगेन यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस है इन द विजिट मॉल। विजिट बीच अगर करते हैं तो अगेन द मैट्रिक्स है, पिज़्ज़ा हट है, सरवन भवन है, भुवन शोमा है। ओके, बहुत सारे केसेस है, बट इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसको हमने डिवाइड किया है बाय यूजिंग द प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक। ओके, सो प्लान क्या हो सकता है हमारा, एक तो हमें विजिट मॉल करना है या फिर विजिट बीच करना है। सो यहाँ पे हमने कंडीशन यूज़ की है प्लान आउटिंग। ओके, आउटिंग का अगर हमारे पास प्लान है तो उसके अंदर हमने यूज़ किया है एंड आर्क। सो जिसके अंदर तीन केसेस कौन से हैं, इवनिंग, एक तो प्लान आउटिंग का अगर हमारा इवनिंग का प्लान है, अगर हमारा मूवी का प्लान है और अगर हमारा डिनर का प्लान है। सो ये सारे हमने कहाँ पे यूज़ किए हैं, एंड आर्क के अंदर यूज़ किए हैं। मीन्स ये सारे कंडीशंस को हमें क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है फॉर द आउटिंग। ओके, बट अगर इसके अंदर अगर हम इवनिंग के लिए जाते हैं तो इवनिंग के लिए हम विजिट मॉल भी कर सकते हैं, विजिट बीच भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमने चूज़ किया विजिट बीच तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर हम विजिट बीच करते हैं तो हम बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई भी आर्क यूज़ नहीं किया है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, और। ओके, सो सेकेंड एंड वाली कंडीशन क्या है, इवनिंग में भी जाने वाले हैं, मूवी के लिए भी जाने वाले, डिनर के लिए भी जाने। सो यहाँ के हमने एंड यूज़ किया। अगर हमारा मूवी का प्लान है, ओके, मूवी का प्लान सुबह है या फिर दोपहर को है, तो उस टाइम में मूवी हम द मैट्रिक्स, ओके, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भुवन शोमा एंड सेवन सामसोई, इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई भी आर्क यूज़ नहीं किया है। सो ये सारे कंडीशंस किस में होंगे, हमारे और कंडीशंस में होंगे। तो इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो हमने चूज़ किया है द मैट्रिक्स। अगेन डिनर का अगर हमारा प्लान है, ओके, डिनर का अगर हमारा प्लान है, सो इन दोनों में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा हट में भी जा सकते हैं या फिर सरवना भवन करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है ये वाले रेस्टोरेंट में मुझे डिनर करना है। ओके, सो ये यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, और। सो हमने क्या किया, इस टाइप का जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हमने क्या किया है, डिकम्पोज किया है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। ओके, ओके, so this is a and or graph. So next is the problem reduction or decomposition can be divided into the different steps, or it is an approach for solving the problems with these steps. The first step is what, break or divide the problem into the various part of sub problems. Okay, find the solution for each sub problem and finally arrive at a final solution to the original problem.
सेम हमने यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, प्रॉब्लम को एनालाइज किया है, देन उस प्रॉब्लम को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच सब प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, एंड फाइनली अराइव एट द फाइनल सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या किया मिला है, इवनिंग को हम विजिट बीच जाएंगे, मूवी हम मैट्रिक्स देखेंगे, एंड डिनर हम सरवना भवन में के रेस्टोरेंट में हम डिनर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन विद अ गोल ट्री। कैसे हम ट्रीज के अंदर गोल ट्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे। ओके, सो फॉर सॉल्विंग द एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ स्पेसिफिक गोल नोड। ओके, स्पेसिफिक गोल नोड, so several questions are framed and solutions are given, so every solution is considered as a node and each time the node is verified whether it is the goal node or not. So when there are difficulties in this approach, the goal tree is constructed with the AND OR graph or a AND OR trees. Here we are using the tree, so each and every time we are using the AND OR tree. So this contains AND node, OR node, and arc and the OR arc. So problems are drawn in a type of a tree by framing the questions like whether one has to do or both. Okay, एक तो एक नोड कोई भी गोल नोड को चेक करेगा या फिर दो नोड्स, एंड क्या करता है दो नोड्स को चेक करेगा, और क्या करेगा ओनली सिंगल नोड को चेक करेगा। एंड बाय यूजिंग दिस सब ट्रीज आर formed and sub solutions are framed, finally the original solution is composed. Okay, so in this problem decomposition with goal trees, first we have a specific goal node, so this is our goal node, and there are different questions are arises to get the solution like a goal state. So every solution is considered as a node and each time the node is verified whether it is the goal node or not. सो हमें क्या करना है, गोल नोड की तरफ रीच करना है। ओके, सो सी हियर इस टाइप का अगर हमारे पास गिवन हुआ वैल्यूज़ है GABC, ओके, जिसके अंदर हमें गोल नोड की वैल्यू क्या मिली है 46। ओके, ओके, सो दिस इज अवर 46 वैल्यू। देन ABC इसके ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है हमारे पास 42, 22 एंड 24। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, सो सी हियर इस टाइप की अगर हमारे पास ट्री है, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है, सो DEFG। ओके, सो D और E के बीच में हमने क्या यूज़ किया है एंड। ओके, सो ये दोनों ट्रीज को हमें कंबाइन करना है। सो वैल्यूज़ क्या होंगी 23 + 4, 24 + 3, सो 23 एंड 24 कितना होगा 46, 47। ओके, 47 + 3 50, 50 + 4 54। सो यहाँ पे D और E का एंड वाली जो वैल्यू है वो कितनी मिली हमें यहाँ पे 54, एंड F और G भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड R, जिसकी वैल्यू है 22 + 18 + 2 + 3। सबको हमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया है। ओके, सो 18 + 2 20, 20 + 22 42 एंड +3 45। सो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली 45। सो यहाँ पे देखो D और E एंड में है और F एंड G एंड में है। सो यहाँ पे 54 वैल्यू मिली 45। सो और में से हमें मिनिमम वैल्यू कौन सी यहाँ पे 45। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 54 और 45 में से मिनिमम वैल्यू है 44। सो H की जो वैल्यू हमारे पास 42 थी उसको रिमूव करके हमने क्या कंसिडर की 45 ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर की है 45। सो 45 वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, सो अगेन यहाँ पे A की वैल्यू मिली हमारे पास 45, देन B की वैल्यू है 22 एंड C की वैल्यू है 24। सो अगेन यहाँ पे B और C जो है यहाँ पे एंड आर्क यूज़ किया है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कैसे होगी 3 + 22 + 2 + 24। सो 22 + 24 46, 46 and 3, okay, 40, then +3 + 2, so here we get the 52. I think here we get the value is 51. Why we 22 + 24 44
45, 46, 46 and 3, 49, 51. Okay, so there is one difference. Here we have a value for 51. Okay, so if you are getting this value 51 over here, and the a value is 45, final a value is 45, and we are adding this value with the 4. 45 plus 4, 49. Okay, so here we get the value 49. ठीक है, सो इन दोनों में से 49 और 51 में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 49 ऑब्वियसली। सो इनिशियली अगर हमारे पास इस टाइप की ट्री है तो यहाँ पे हमने देखो 42 प्लस 4 कितना होगा? 46। सो यहाँ पे हमें मिली 46 और इन दोनों को ऐड करके हमें वैल्यू कितनी मिली? 51। सो इन दोनों में से क्या हमने चूज़ किया? 46 चूज़ किया है, ठीक है। बट अगर हम अगेन ए वाले को अगर हम डिकम्पोज करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, सो हमारे पास 46 फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा, 49 हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। ए के लिए फाइनल सोल्यूशन 45 होगा, बट जी के लिए फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? 49। ओके, दिस इज अ न्यू एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट फॉर द goal G. So this is all about the problem reduction and problem decomposition technique. Thank you.